Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am SHIEKH ZAHOOR, teacher of high school Shanu, and today we are going to discuss about the sexual reproduction in animals. इससे पहले हमने asexual reproduction को पढ़ा था, तो आज हम sexual reproduction को discuss करेंगे. Let us start with our topic. Sexual reproduction in animals. Sexual reproduction is that reproduction in which involvement of sexes occurs. यानी एक वो reproduction जहाँ पे कि sexes का involvement होता है. तो sexes क्या है यहाँ पे? Sexes are basically the two gametes. One is the male gamete and another is female gamete. तो जो male gamete है, male gamete is basically the sperm which is formed by the male sex organ, that is testes, while as female gamete is the ova which is formed by the female sex organ called ovary or ovaries. तो ovaries यहाँ पे और testes मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि because these are two in number. It is a pair, both in male as well as in female, testes and ovaries. तो एक्चुअली क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म और ओवा का यूनियन होता है या इनका फ्यूजन होता है. कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है, जो कि मैंने आपको कल बताया था. तो इससे क्या होता है? इससे जाइगोट बनता है. जाइगोट की फिर बहुत ज्यादा ड्यूजन्स होती है, मल्टीपल ड्यूजन्स ऑफ जाइगोट ऑकर्स एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला, that results in the formation of morula, then in the formation of blastula, and then later on occurs the gastrulation. तो इसके बाद इसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी है वो जन्म लेता है. तो क्या होता है, और ये सारा प्रोसेस जो है ये इट कंप्लीट्स इन 8 to 9 months. एक्चुअली क्या होता है, whenever there is union of sperm with ova to result in the formation of zygote, the process is known as fertilization. तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए, एनिमल्स में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए बोथ इन मेल एज वेल एज इन फीमेल की कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स हैं और कैसे ये प्रोसेस होता है. सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे. नो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज दैट सिस्टम और इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज ऑर्गन्स which are used for the process of reproduction in case of males. It is called as male reproductive system. तो male reproductive system में सबसे पहले जो है ये एक्चुअली टेस्टीज है. टेस्टीज जिनको हम मेल सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं. जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज आर बेसिकली दे आर ओवल शेपर्ड and then there is secretal sac, and these testes are basically enclosed. They are enclosed in a bag, in a circular bag, and that circular bag is called as secretal sacs. But there is a certain property of this secretal sac कि इस secretal sac का जो temperature है ये हमारा जो body का temperature है उससे नीचे होना चाहिए. It must be below our body temperature for the efficient reproductive phase or for the efficient production of sperms. And then there is epididymis. तो जो secretal sac है, secretal sac एक्चुअली टेस्टिस को इनक्लोज करता है. तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस से जो ये स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स एक्चुअली दे फाइंड देयर वे इन ए क्वाइलाइट ट्यूब. क्वाइलाइट ट्यूब हम ये कहेंगे, अगर हम कोई भी ट्यूब है ये एक दूसरे के इर्द गिर्द या इसमें काफी ज्यादा क्वाइल्स होंगे या काफी ज्यादा हम ये कहेंगे कि इसमें ये काफी ज्यादा it should be in a zigzag way, that is called as coiled tube. तो जो epididymis है, epididymis इस पार्ट को हम epididymis कहते हैं. जो epididymis है, it is basically the coiled tube or coiled it is a coiled tube which is associated with these testes, and these testes are basically enclosed in a bag, in small bags. Those bags are called as secretal sacs. Then this epididymis, it finds its way in a long tube, and those tubes are called as sperm ducts. Basically जो testes है ये दो है, एक साइड से है, दूसरा दूसरे साइड से है. जो ट्यूब्स है ये भी एक्चुअली दो ट्यूब्स है. इनको हम sperm ducts कहते हैं क्योंकि जब sperm निकलते हैं, sperm epididymis में जाते हैं, epididymis से सीधे किस में जाते हैं, ये इसी लॉन्ग ट्यूब में पहुंचते हैं. तो जो इसके बाद जो है sperm duct के बाद seminal vesicle है. तो seminal vesicle क्या है? सेमिनल वेसिकल बेसिकली एक दूसरा ट्यूब है. तो इसी सेमिनल वेसिकल में एक्चुअली क्या होता है, ये स्पर्म्स जमा होते हैं. और ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल एक्चुअली एक दूसरे ट्यूब के साथ
मिलता है ये ट्यूब, इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। और ये यूरिथ्रा एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, वही यूरिनरी ब्लैडर जहां पर कि यूरिन जमा होता है, और यूरिन फिर कहां से बाहर निकलता है, यूरिथ्रा से बाहर निकलता है। तो इसी यूरिथ्रा में एक्चुअली कौन ये स्पर्म्स भी जमा होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्टोर्ड अनदर ट्यूब, it is stored in another tube. That tube is called a seminal vesicle, and this seminal vesicle is attached with urethra. तो जो urethra ये कहां से आता है, it comes from the urinary bladder. तो इसके बाद जो है, इसके बाद ये जो इसके बाद सेमिनल वेसिकल के बाद सीधे पेनिस है। तो पेनिस क्या है, पेनिस पे आखिरी बार ये स्पर्म्स पहुंचते हैं और पेनिस से ये सीधे बॉडी के बाहर जाते हैं। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो जो ये स्पर्म है ये पेनिस से सीधे फीमेल के वेजिना में चला जाता है। तो वेजिना में फिर ये मूवमेंट करते हैं स्पर्म्स, तो वहां पर ये वेजिना के बाद ये ओवरी में एक्चुअली ओवा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये है, ये क्या है, ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहां पर कि हमने देखा कि टेस्टिस, सेक्रोटल सैक, एपिडिडाइमस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव system. So that was all about today's topic. Have a nice day.